Please have a seat, ladies and gentlemen. Today we are very fortunate to have Chef Kunal Kapoor to conduct a class with you on food anthropology. So food anthropology, he'll be really talking about it. He's actually a specialist in that because Chef Kunal is going around trying to find out about food from different places, from different regions, from different cultures. So that is what exactly food anthropology is about. When you try to find out about food which has been, created throughout the ages from the very beginning of, our social beings, how people were initially hunters and then they started, after the discovery of fire, they started cooking the food, and how different masalas or ingredients were discovered which were added, and then different types of dishes getting started to be prepared. How food came down from the old ages to the modern concepts where we hear about molecular gastronomy and all that. So food has really evolved over the ages. But for any good chef, it is very important to know how food came about, what were the basics on creating a particular food from different cultures. Once you know that, then as a chef, you can be more creative, you can develop on and create more exciting food. So that's where food anthropology comes in. So we are here to listen to our expert, Chef Kunal Kapoor. Once more, a big hand to welcome him. Thank you. Okay, so we'll talk about, food anthropology is a big subject. So we'll have to have a start point and end point because it's an ongoing evolution of food and human. So we'll talk about kebab, right? We all know that the earliest humans were all hunters and gatherers. Who will tell me what does that mean? Hunter and gatherer. क्या होता है? इंसान पहले hunter gatherer था. मतलब हाँ जी. Sir, in early ages, the human used to hunt animals and they gather those animals for their own consumption. Right. जो earlier humans थे, जो caveman थे या उससे पहले थे, sit down. They would hunt other animals and gather whatever fruits or edible things around in the forest that they had. So whether hunting was for meat, whether it was fishing, whether it was plucking some herbs or grass or fruits or nuts or berries. So that was the lifestyle. मैं उस ज़माने की बात करूं जब हम लोग केव्स में थे या जंगलों में रहते थे, राइट? ऐसे तो था नहीं था ज़ोमैटो को बुला लेंगे या ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएंगे और कोई रेसिपी बनाएंगे. वो कॉन्सेप्ट तब नहीं था. यू अंडरस्टैंड मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सी एज की, राइट? सो स्टोन एज. तो उस ज़माने में ना हंटिंग गैदरिंग करते थे. तो जाहिर सी बात है पहले मीट कच्चा खाते थे, जैसे जानवर खाते हैं. जानवर जैसे शेर अगर हिरण का शिकार करता है तो उसके सीख कबाब थोड़ा ना बनाता है. Eats it, right? So we humans used to eat it like that. But धीरे धीरे discovery of fire changed everything. You know how it changed? Discovery of fire. Fire is the biggest innovation that we have done. तो बाकी सारी innovations possible हुई हैं because we could control fire. How? So the moment fire came, we started roasting or cooking the meat. Meat became tender, softer, right? First, you had to hunt. Then, वो animal को खाने में छोटा सा भी piece, because it's raw, you had to chew a lot. छोटा piece, and it will tire you. You will get tired. If I was to give you chewing gum as your food and lots of chewing gum to eat, you will be tired. Your face is constantly moving. So, and you had to eat it fast because the moment you kill, there are other animals who can smell and will come and you'll have to run. So, cooking or heating or cooking food on fire made the food softer, which meant your chewing time became less, your digestion became fast, which means faster energy
which gave development of the brain. So more energy was first being used to eat food. Now that excess energy, because you're eating food like this, the body started using in developing brain functions, nerve functions, and that's how the evolution of human beings came about. Okay, we could think complex, we could do complex things with ease, we could plan, we could come together, and many more things. So fire and cooking food on fire changed the game, made us who we are sitting here today. Was fire, control of fire. Fire to natural source hai. It's not, you can make a fire, you can control a fire, but how to control a fire was the main thing. So over a period of time, so world over kahin pe bhi aap ho, whether the evolution which started in Africa say great, do you know that we all people of the world, our civilization started from Africa? Did you know that? कई लोगों को नहीं पता थी. अफ्रीका से people started migrating. यूरोप गए, एशिया गए, फार ईस्ट गए, अप नॉर्थ गए, आइसलैंड तक गए, अमेरिका तक गए, पूरे वर्ल्ड में डाउन ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, आर्टिक पहुंच गए, एस्किमो भी बन गए, सब कुछ हो गया. तो उनके साथ साथ एवोल्यूशन जगह के हिसाब से चेंज हुआ. The interesting part is that everybody in that period was taking a piece of meat, roasting it and eating it. Simple. There were no vegetarians, by the way, then. Everybody had to rely on meats as the primary source of protein. जब evolution हुआ, brain function बढ़ा, cultivation start हुआ, innovation start हुई, बहुत सारी चीज़ें start हुई. But one thing is common, which is grilling or cooking of food or meats on an open fire. So what is kebab? What is kebab? हाँ जी बोलो. Sir, in a roasting the food on an fire, like similar that is just set it. Exactly. So sit down. Kebab is made with two words, K-ab. Ab is a Urdu or a Farsi word meaning water. K-ab is in the absence of water, bina pani ke, which means dry cooking, dry roasting, is the word kebab. Right? Now, हिंदुस्तान में, मिडल ईस्ट में, पर्शिया में, इन सब जगहों पे कबाब was the word for roasted meat. वहीं पर आप स्पेन चले जाओ, उनको पिंचोतोस कहते हैं. पिंचोतोस उनको ये बोलते हैं. तो सबके अब अलग अलग नाम है. चाइना में क्या बोलते हैं? सॉरी, आई एम बैड विद चाइनीज, बट चाइना में भी उनका एक पर्टिकुलर नाम है. सो हर एक का ना अपना अपना सबने नाम दिया. देन another couple of noteworthy mentions is Mesopotamian civilization. स्कूल में पढ़ा था Mesopotamian civilization, cradle of life कहते हैं. क्योंकि जब migrations हुई, सबसे पहली oldest civilization जो on record है वो Mesopotamian civilization है, जो modern day इराक के आसपास है और थोड़ा portions of इराक, वहाँ से और आगे फैला. So जो civilization है ना, वहाँ के कुछ जो टेक्स्ट हैं, वहाँ के कुछ ऐसे हमें हिंट्स मिलते हैं जहाँ पर मेंशन है कि कबाब मतलब वो चीज़ जो हल्की सी जली हो, या जली हुई, पता है क्या, जैसे आप पनीर टिक्का, चिकन टिक्का खाते हो तंदूर के, वो हल्का चारिंग होती है ना, उस तरीके की चारिंग. तो उस तरीके के मेंशन हैं. हमारी एक किताब है, किताब अल तबिक, ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कुक बुक है ऑन मिडल ईस्टर्न कुकिंग, और उसके अंदर भी कबाब का मेंशन है. इट्स अ वेरी ओल्ड बुक. और अभी वो किताब आई थिंक टर्की में एक म्यूज़ियम में, हाँ टर्की में एक म्यूज़ियम में है. दैट्स द ओल्डेस्ट हैंड रिटन कुक बुक, प्रोफेशनली रिटन कुक बुक, जो डॉक्यूमेंट करती है मिडल ईस्टर्न फूड को.
सो वहाँ पर भी हमें वहाँ से भी पता चलता है कि कबाब यानी चारिंग को बोला या किसी ने भुनी चीज़ को बोला और वहाँ से कबाब निकला। अब उसको आप कबाब कह लीजिए, उसको आप ग्रिल्ड शास्त्रिक कह लीजिए, स्कीवर्स कह लीजिए, ग्रिल्ड मीट, रोस्टेड मीट कह लीजिए, जैसे यूरोपियन स्टाइल में अवन में पकाते हैं, रोस्ट करते हैं, होल रोस्ट चिकन, रोस्ट टर्की, रोस्ट लैम, रोस्ट व्हील बीफ, जो भी, राइट। वो टेक्निकली अवन क्या करता है, फायर को मिमिक करता है ना, हीट दे रहा है। जब अवन नहीं होते थे तो उसे ओपन फायर पे अगर बिग एनिमल यू टाइंग स्पिट रोस्टिंग करते रहे, ऐसे घुमाते थे ताकि इवनली कुक हो। छोटे पीस होंगे तो स्कीवर्स में डाल के यू वुड रोस्ट इट एंड ईट इट, राइट। बट जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, जैसे एक जनता निकल गई मिडल ईस्ट की तरफ, एक निकल गई एशिया की तरफ, एक निकल गई अमेरिकास की तरफ, तो जो जो अवेलेबिलिटी थी, जो मीट अवेलेबल था, जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे, उन्हीं को मिलाकर उन्होंने अपनी तरीके की कुकिंग करनी शुरू करी। सो जैसे कॉन्टी में आपने फर्स्ट ईयर में गिगोदी एन्यू रोटी विच इज़ रोस्ट लेग ऑफ लैम्ब है, रोस्ट चिकन है, ये सीखा था, याद है? हाँ या ना, भूल गए? वहीं पर इंडियन में आप आते तो कबाब की बारी होती है। तो हर जगह जहाँ जहाँ रोस्टिंग ऑफ मीट गया, अपने हिसाब से अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जैसे हिंदुस्तान में डेयरी इज़ इनफ, लाइक इनफ बोले तो काफ़ी है, अबंडेंट, तो दही का इस्तेमाल किया। दही क्या करता है कबाब के अंदर, बताओ? व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडिंग कर्ड टू लेट्स से तंदूरी चिकन? हाँ जी, वो हाँ, अच्छा, टेंडर करता है। और टेंडर तो वैसे भी हो जाएगा वो पकने के बाद। हाँ बोलो अब। हाँ, परफेक्ट, मॉइस्चर एंड फैट। दही इज फैट, लॉट ऑफ फैट इन कर्ड, सॉरी मिल्क, राइट। उससे कर्ड में भी फैट होता है। तो अगर एक लीन पीस ऑफ मीट को, लीन पीस क्या होता है, जिसके ऊपर फैट ना हो, मार्बलिंग नहीं है, उसको जब आप रोस्ट करते हो, क्योंकि चिकन इज़ ए लीन मीट ना, उसमें इतना फैट होता नहीं, तो उसको जब आप रोस्ट करते हो तो वो ड्राई हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो इट बिकम्स वेरी ड्राई। दही रहता है, दही मॉइस्चर देता है, टेस्ट देता है, कुछ हद तक उसे टेंडराइज करता है, प्लस उसको फैट देता है, जस्ट इनफ फैट कि वो उसको मॉइस्ट रखे और उसको सॉफ्ट और सकलेंट बनाए। ठीक है। सो द पॉइंट इज के control of fire was the starting point to the modern day kebab that you eat. Whether you cook it in an oven, whether on a sigdi or on a tawa, or wherever you cook, howsoever you cook, has just diversified. वहीं पर grilled skewers आप खाते हैं या shawarma खाते हैं, ये वो उसी नाम कुछ और होगा, बट ये सब कनेक्टेड हैं उसी सोर्स को, वन सोर्स, विच इज़ फायर प्लस मीट इक्वल्स टू गुड फूड। अलग अलग वेरिएशंस अब आ गए, कोई सैलड के अंदर डालता है, कोई बन के अंदर कोई सैंडविच बनाता है, कोई रोटी बनाता है उसका। सो दिस इज मोर और लेस बीन दी, इन सिंपल वर्ड्स, द जर्नी ऑफ कबाब, राइट। एंड आप देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपको अलग अलग तरीके के कबाब मिलेंगे। लाइक तंदूरी चिकन इज़ बिकम वेरी फेमस, ग्रेट, बट और भी ऐसे कबाब हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसे कबाब बोले। डाउन साउथ कबाब इज़ नॉट अ प्रोमिनेंट वर्ड, या राजस्थान में सूला बोलते हैं, या मांस का सूला या मुर्ग का सूला, सो इट डिनोट्स कबाब। Similarly, down south, there is roasting of meat, but they don't call it kebab. They have different names to it. But technically, it's roasted meat. You may roast it now on in an oven and not on open fire, but ट्रेडिशनल कुकिंग तो सारी चूल्हे पे या आग के ऊपर ही होती थी। इंडियन ट्रेडिशनल चूल्हा भी जब आप देखते हो, वो लकड़ी, वो मिट्टी का बना होता है, उसमें फायरवुड जाती है, लकड़ी जाती है, राइट। गांव में अभी भी कई जगह हम देखते हैं, या ड्राइड काउडंग या उपला होता है, दैट इज़ अनदर सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर कुकिंग। सो दिस इज इन अ नटशेल अबाउट kebab. Now you can go in depth, as complicated as you want, but
एक ना आपके लिए टच एंड फील है कि ओके दिस इज व्हाट इट इज, दैट्स हाउ इट कम्स अबाउट एंड दिस इज वेयर इट कम्स टुगेदर. Anybody has any questions about anything? हाँ जी. Sir, I have one question regarding the kebab only. Like in olden days, we used to cook the kebab in open fire. Nowadays, which has been replaced with ovens and all. It does differs the taste much or a bit. Quite a bit, a lot. And what are the main spices responsible for the taste of the kebab? Sorry? Main spices in India. What are the main spices responsible for the taste of the kebabs? Yeah. Main spices. There are no main spices. Whatever spice you want to use, you use. Every kebab has a different spice. So is there any other name? I probably don't know. Many of my friends might know. What are the like roasting of meat that you consider previously are known in the continental cuisines? Like can you explain? मुझे सवाल नहीं समझ आया तुम्हारा. कबाब कबाब जो है उसका उसका मेन कंटिनेंटल क्विजीन में क्या कहा है? Anything, roasted chicken, like I said, na? Huh? Yeah, thank you. Anybody else? Anyone? Any सवाल? किसी ने नहीं पूछा तो वेजिटेरियन कबाब कहाँ फिट होते हैं? So different beliefs, आदमी के, humans के different beliefs changes what they eat. Availability, क्या available है? And what are his beliefs? Beliefs में क्या आता है? Stereotypes, social, religion. Agar I am Jain, I can't eat onion and garlic and non-veg. So let's say if I'm a vegetarian, I would like to have, let's say, aloo ka kebab with some garlic, ginger. But if I'm a Jain, I will not eat, right? I will eat, if I'm a Muslim, I will not eat pork. If I'm a Hindu, I will not eat beef. So over a period of time, everything got divided and subdivided as per your belief or culture or community, socio-economic group, what standard, what you can afford. Can you afford something very expensive? No. You can afford something very basic. तो वो खाया. So over a period of time, everything has changed in that fashion. Now, a lot of people believe that there is nothing known as veg biryani. You know, I'm giving an example. A lot of, I get a lot of comments and I post a vegetarian biryani video on my channels. I get a lot of comments कि veg biryani नहीं, veg तो पुलाव होता है. Technically, everything was non-vegetarian. We started eating non-veg and then turned into belief that no, vegetarianism, Hinduism में जैसे लिखा गया कि मांस से परहेज करो. अगर I don't know लिखा नहीं लिखा, but I'm just saying. So belief के बाद वो change हुआ. लेकिन बिरयानी का भी जो सफ़र है या पुलाव जो आज हम खाते हैं घर पर, जीरा पुलाव, वेज पुलाव, एक टाइम में सिर्फ मीट से बनता था. Later on, we added veggies, took out the meat. कि इसको vegetarian, we prefer to eat vegetarian food for whatever reason. Animals को harm नहीं करना या जो भी अच्छा एक belief है. So similarly, biryani and pulao also changed. So biryani and pulao में difference क्या है? हाँ, आप बताओ. आपने हाथ खड़ा किया. आपने हाथ खड़ा किया? नहीं किया था. क्या कर रहे थे आप? उजली. हाँ, हाँ जी. हैं? दम तो हम लोग दम के मुर्ग को भी देते हैं, करी को भी, तो उसको बिरयानी बोल देते हैं. दम इज अ स्टाइल ऑफ कुकिंग बाबा. यू कैन दम चावल, यू कैन दम किनुआ, यू कैन दम चिकन, यू कैन दम पनीर. दम इज स्टाइल ऑफ कुकिंग. हाँ जी. Much spices. सॉरी. No use of much spices in pulao.
I eat less spicy, so मतलब वो क्या बिरयानी निकलेगी? Nope. What else? हाँ जी, आप बताओ. In biryani, we probably use gravy base, which we'll do for layering. And in pulao, we don't use it. We mix everything together and then we pour water and we keep it on the oven to rice to What pulao are you talking about? Vegetarian pulao in your head? veg biryani. You're cooking vegetarian biryani and vegetarian pulao? Kind. Not necessary. I'm talking about meat pulao. Then what are you going to do? Then What else? You guys have YouTube on your phone? Don't you Google such doubts? Huh? Bollywood dance steps देख तो सारे. Google all these videos, you'll get to know the exact difference between pulao and biryani. Don't do it now. What are you doing? If you're doing it now, you can subscribe to my channel. Yeah, tell me. हाँ, who is sir? किसको doubt है? हाँ जी. Sir, is the difference is in heat? Sorry. Heat. No. No. In pulao, we do not pre-cook the rice. In biryani, we pre-cook the rice. Biryani में pre-cooking of rice is a step for convenience. You can do it for pulao also. It doesn't matter. Technically, biryani should be raw rice with raw meat cooked together. We boil it just for our convenience because it's easy to cook. Meat will take time for cooking and rice will cook. That's the fun part. No, yes, they separately when you cook them, they take different times. But when you cook it, slow cook it on dum, they take the same time. The technique of cooking changes the duration that is required for ingredients to cook. That's the beauty. तो जब हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी जो हैदराबादीज होते हैं ना प्योरिस्ट वो बोलते हैं बाकी किसी को बिरयानी नहीं बनानी आती हम बिरयानी बनाते हैं क्योंकि हम कच्चा मीट और कच्चे चावल एक साथ मिलाकर एक टाइम पे निकालते हैं और दोनों ओवरडन या अंडरडन नहीं होते. दैट्स द ब्यूटी ऑफ कच्चे गोश्त की बिरयानी या कच्चे चिकन की बिरयानी और व्हाटएवर बिरयानी दैट यू डू. डिड यू नो दैट उसके अंदर दे डोंट कुक राइस एंड दे डोंट कुक मीट दे पुट रॉ एंड येट इट इज कॉल्ड बिरयानी एंड दैट्स पॉसिबली कॉल्ड द रियल बिरयानी. हाँ जी, हाफ हैंड. ट्रेन किया जाता है और बिरयानी में डायरेक्ट वी यूज़ द हीट एंड अभी तो उसने बताया कि उसको चावल को आधा पका के ड्रेन करके फिर डालते हैं. अच्छा मैंने सुना नहीं था. हाँ तो बिरयानी में भी ऐसे ही करते हैं. हाँ जी वेरी गुड. ये अच्छी ब्रेन हो रही है वार्म अप सेशन. Sir, actually, in the every preparation which contains yakhni is considered as pulao, whereas we cook biryani on dum by giving it dum and all. तो यखनी is also cooked on dum यार. You can cook raan also on dum. You can cook aloo also dum. Dum aloo क्या है फिर? Dum aloo is not a biryani, it's a curry which you can cook on dum. So how is it related? No. Okay, sir. और कोई? हाँ जी तुसी दसो. We use marinated vegetables and all. Marinated. Yes, and So then, marinated for pulao also. हाँ, it'll be pulao. okay. हैं? I'm talking about sir there is then no difference. So what are you trying to say? Biryani is equal to pulao? Quiet. So where is the difference? So you go on the internet, you will find एक ड्रेनिंग मेथड होता है, एक एब्जॉर्प्शन मेथड होता है. अगर ड्रेन कर दो चावल को तो पुलाव बन जाता है और चावल को ड्रेन करने के बाद सीधा डाल दो दम पे और झोल पानी डाल दो तो वो बिरयानी कहलाती है. दे आर ऑल रॉन्ग. नॉट एवरीथिंग यू फाइंड ऑन यूट्यूब इज करेक्ट ना. सो व्हाट इज इट? कर लिया सबने यूट्यूब. हाँ ड्रेनिंग मेथड गलत है वो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. और हाँ जी. Sir, difference is spices in spices. Well, not really. You can make a spicy pulao also. No. Okay, sir.
What else? ओके हो गया गपशप, कुछ निकला हल? निकला? तू इतने खुश है जैसे तेरे को पता चल गया। फिर व्हाट इज द जोक? नो जोक, शेयर, यू कैन शेयर। ओके, अच्छा चलो, आई टेल यू नाउ। अंडरस्टैंड, आजकल के ज़माने में ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ लाइन बिटवीन बिरयानी एंड पुलाव बिकॉज एवरीथिंग इज ओवरलैपिंग। ठीक है, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस। ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट जैसे हम पुलाव बोलते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या आता है दिमाग में? जैसे मैं बोलता हूँ पुलाव, घर की याद आती है, घर पे मम्मी बनाती है पुलाव, है ना? कौन सा पुलाव? अरे बासमती तो राइस की वैरायटी है। हाँ? अच्छा, बासमती, बासमती पुलाव वो क्या होता है यार? एक बंदा बोलेगा तो मुझे समझ आ जाएगी। Referred to the color of the pulao. In Acha. Bengali, we call it Bashunti pulao because What the color it is? It is saffron color. Yeah, saffron color. That Bashunti color is pulao. called in Bengali, which is called as Bashunti. ओके, और एनी पंजाबी जीरा पुलाव, हाँ? वेजिटेबल पुलाव खाया है? घर पे बनता ही होगा। और प्लेन पुलाव, आलू पुलाव, मटर पुलाव, मोती पुलाव, गोभी पुलाव, है ना? नाउ अंडरस्टैंड, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये पुलाव एग्जिस्ट नहीं करते थे। दे यूज्ड टू बी ओनली वन। पुलाव meant यखनी पुलाव। व्हाट इज यखनी? मटन विच इज बॉइल्ड। यखनी स्टॉक को कह लो, स्टॉक तो बड़ा फ्रेंच वर्ड है ना, तो बेसिकली मटन मीट के साथ, बोन, ऑन द बोन, अलॉन्ग विद द बोन मीट, बॉइल्ड वॉज यखनी। बॉयल करा हुआ मटन के अंदर स्पाइसेस डाल दो, घा डालो, चावल डाल दो और दम पे उसे पका दो, वॉज पुलाव। पीरियड। नाउ कम टू बिरयानी। बिरयानी comes from a Persian word, the name बिरिया कारदान, पर्शियन फारसी है। बिरिया कारदान मीन्स, बिरिया मतलब तलना और कारदान मतलब एक्शन ऑफ, मीन्स तलने के एक्शन को बोलते हैं। और तलना ये नहीं कि डीप फ्राई जैसे हम लोग पकौड़े तलते हैं, वो नहीं। तलना मतलब तेल के अंदर किसी चीज़ को भूनने को कहते हैं। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन पुलाव एंड बिरयानी इज, पुलाव was made always with yakhni, which meant boiled meat. Boiling करते वक्त तुम spices डाल सकते हो, whatever that you want to add, but it was boiled. Whereas biryani, you would bhuno the meat in fat, whether it was animal fat or oil or ghee or tel or whatever. And this was the major difference. Over a period of time, like when you go to ईरान, वहाँ बिरयानी मिलती है, तो वहाँ की जो बिरयानी है, और वहाँ पुलाव भी मिलता है, वहाँ की बिरयानी और पुलाव सिमिलर दिखते हैं, बट फ़र्क यही है, एक उबला हुआ है, एक में फ्राइड मीट होगा। सो यहाँ से जेनेसिस है। उसके बाद मेरे घर में आई, मैं मीट नहीं खाता, मेरे को पुलाव बनाना है, मैं तो सब्जियाँ डाल दूँगा, मैं तो येलो कलर डाल दूँगा, मैं तो गोभी डाल दूँगा, मैं तो ये डाल दूँगा। अब वो हमारे लिए होली ग्रेल बन गई जी, हमारी तो कुजीन ऐसी सदियों से हम खाते आ रहे हैं, राइट? बट द ट्रूथ इज, it started from meat, and that's the difference between biryani and pulao. अब over the years सब कुछ mix हो गए, they're overlapping, so एक clear line of distinction बताना मुश्किल है, क्योंकि अब बहुत सारी variations हमने खड़ी कर दी, right? But ये major difference होता है। कहीं मिलेगा गूगल पे? नहीं? यूट्यूब पे मिलेगा? हाँ बेटा, पहले सब्सक्राइब तो कर। करा?
तूने करा है तो इसका चेक करना पड़ेगा, फ़ोन बाजू में चेक कर इसका, मिस्टर बांग्लादेश जस्ट चेक इट, कर चेक, हंस रहा वो। या ओके, सो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, दिस इज द स्टोरी ऑफ बिरयानी। हु इज फ्रॉम यूपी हियर? तहरी, यू नो व्हाट अ तहरी इज? तहरी, तहरी, खड़े होकर बताओ सबको तहरी क्या होती है। उसको माइक्रोफोन दे दो यार। So tehri is like we put the rice and the vegetable together. तहरी, एक्सप्लेन अगेन। हाँ सही बोल रहा हूँ, एक बार ऊंचा दोबारा बोल दे, किसी का ध्यान नहीं था। यू नो व्हाट अ तहरी इज? वेजिटेबल पुलाव को तहरी बोलते हैं ना? हाँ, वेरी गुड, सुनो अब उससे। We put the rice and the vegetable together in the pressure cooker and make them boil. With the आलू की तहरी, Yes. आलू गोभी की तहरी, हाँ, सोयाबीन की तहरी। आपको पता है चिकन की तहरी भी, मटन की तहरी भी बनती है, हैं? हाँ, सब बनता है, राइट? बैठ जाओ। अब तहरी क्या बोला है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पुलाव एंड चिकन बिरयानी? हाउ डिड तहरी स्टार्टेड? इंटरेस्टिंगली, जैसे कि पुलाव ऑलवेज स्टार्टेड विद नॉन-वेज, तहरी ऑलवेज स्टार्टेड विद वेज, बट नाउ नॉन-वेज वर्जन्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ये उल्टा हिसाब है। तहरी ऐसे कहते हैं, दिस इज व्हाट इट इज सेड, दैट द इंडियन और द हिंदू कोटियर्स इन द कोर्ट्स ऑफ मुगल्स, जब उन्होंने देखा कि पुलाव और बिरयानी बन रही है, बिरयानी से फैसिनेट होके उन्होंने कहा कि यार वीड लाइक टू मेक बिरयानी ऑफ आवर ओन। बट बिरयानी क्योंकि हमेशा मटन से बनती थी या नॉन वेज से बनती थी, दे स्टार्टेड यूजिंग बिरयानी स्पाइसेस इन वेजिटेबल्स एंड मेड देयर ओन वर्जन ऑफ राइस, विच वॉज अ मिक्स ऑफ बिरयानी एंड पुलाव। थोड़ा पुलाव के स्टेप्स, थोड़ा बिरयानी के स्टेप्स, बट वेजिटेरियन, एंड इट बिकेम तहरी। तो यूपी में, पूरे यूपी में तहरी खाई जाती है, स्पेशली हु डोंट ईट मीट। इट्स लुक्स लाइक अ पुलाव और अ बिरयानी, एंड अब उसके नॉन वेज वर्जन्स भी आ गए। शुरू हुआ है तो इसकी वेज से। सो तहरी, पुलाव, बिरयानी, या पुलाव पहले आया, उससे पुलाव से निकली बिरयानी, उससे निकली तहरी, ये सीक्वेंस में। सो बिरयानी, पुलाव इज ओल्डर देन बिरयानी, बड़ा भाई, मोर लाइक चाचा, ताया, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? वेरी गुड, वेरी लर्नेड क्लास, नो क्वेश्चंस, सब पढ़े लिखे हैं। ऑलराइट, सो हंसी आ रही तेरे को बड़ी? अरे हाँ, well, I think it's important to know the background of your cuisine, because how else will you move forward with it? If you don't know the base, your directions could become baseless. That, you know, Indian food is very scientific. हाँ, सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब डॉक्टर हैं घर पे ना, सबके पेरेंट्स। जीरा खा लो इससे हो जाता है, अजवाइन खा लो हो जाता है, पेट में दर्द है तो ये, टांग में दर्द है तो, कान में दर्द है तो सरसों का तेल डाल दो, हो जाता है ना। सो वी आर ऑल डॉक्टर्स, सो वी आर वेरी फूड बेस्ड सोसाइटी, वेयर मेडिसिन इज फूड, फूड इज मेडिसिन. Earlier it was. You know, the entire Ayurveda is also does not treat you by giving you medicines, but जड़ी बूटियाँ, इसका रस पियो, सुबह इतने बजे पियो, शाम को इतने बजे मत खाओ, उसके बाद मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बॉडी टाइप के आपके। सो आपको अपना बेस पता होगा ना, तो उसको एडवांस करने के लिए डायरेक्शन जो होगी ना, इट्स ईजियर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Brilliant, Ji. Thank you so much. That was my session with you guys. I hope you guys enjoyed. Thank you. Thank you.